Okay. So, good morning. This is chapter number 7 now. So, as it is, bit revision sessions are going on. Chapter number 1 to 6. In that 1 and 6 together, 7 different definitely, but again easy. In that, what is to focus, what is to, see before exam. Shall I start discussing that? So let me keep simple, you can say revision first, then we'll go on your doubt solving. So I would request each one of you not to give your queries in between. Instead, focus on all the concepts and then we'll go with the doubts. So 3 points. Let me just see how many of you actually remember the chapter content. So यहाँ पे कितने concepts covered है? Can I say 3? 3 concept covered थे. Which are they? शॉर्ट में चलेगा, शॉर्ट में चैट बॉक्स. वेरी गुड मॉर्निंग. 3 topics covered, the major 3 topics. Yeah. Section 8 company, trust and society. Can I say Companies Act 13, Indian Trust Act 1882 and Societies Registration Act 1860 sort of, right? 3 different act. सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी को जाते हैं. So can I say this company cannot use private limited or limited as a suffix? Number 1. Number 2, who is giving license to this companies? Everyone. Who is giving license to this type of companies? Who is giving? Oh, wrong answer. It's not ROC. It's not ROC. It is central government, I agree, but partially agreeing, not correct answer though. Thank you so much. Can I say RD, power delegated to RD? See, silly mistake, a very simple mistake. But ऐसी mistake के लिए अगर checker strict रहा ना, तो सिंपल सी चीज़ है, वो आपको चाहे तो 0 दे सकता है कि यार इनको ये भी नहीं पता कि लाइसेंस कौन एग्जैक्टली देता है. फॉर यू इट्स अ मिनिस्ट्री, ROC वन एंड द सेम. तो फिर कहाँ से मार्क्स आएंगे? सो वी हैव टू बी केयरफुल बाय विद आवर वर्ड्स दैट इफ वी आर राइटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे पावर डेलीगेटेड टू RD, या तो डायरेक्टली RD लिखो. आई डोंट माइंड, आई एम परफेक्टली ओके विद RD ओनली. और इफ इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रैकेट प्लीज एड पावर डेलीगेटेड टू RD. This is first point. Can I say they can do only the activity which is registered in their MOA, and that is more like a promotion of arts, commerce, science, charity, you can say welfare, etc., research, and all they can do is put their profits. They can earn profits, yes ma'am, they can always earn profit, but वो profit कभी भी dividend में जा सकता है, हाँ या ना? क्या उस profit का हम dividend दे पाएंगे? नेवर, नो, नेवर एवर. सेक्शन 8 कंपनी अगर डिविडेंड देने लगी ना, तो भाई ये तो नॉर्मल कंपनी जैसा हो गया. बिजनेस करो, अर्न करो, डिविडेंड दो, खत्म. तो फिर तो तुम प्रॉफिटेबल एंटिटी हुए, नॉर्मल बिजनेस हो गया. चैरिटी कहाँ आई इसमें? यू अर्न, पुट इट इन योर प्रमोशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स, ग्रेट. डिविडेंड इम्पॉसिबल. अगर सेक्शन 8 कंपनी को भी डिविडेंड देने के लिए अलाउ कर दिया, देन इट विल बिकम मोर लाइक अ प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी. इसका मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा, राइट? जो हम नहीं चाहते. दैट इज वाई डिविडेंड कभी भी नहीं. एंड इफ यू यूज एनी PVT, LTD और LTD sort of suffix, you give dividend or you do any such revocation can happen of license if you do such thing which is contravention of the conditions of license. अगर आपने लाइसेंस की कोई भी कंडीशन को ब्रीच किया है, in that situation your license will be cancelled. but before that, India है, opportunity of being heard तो देना ही है. जो हमारा law है, that you have to give opportunity to be heard, and that opportunity once given, after that decide you want to merge this company with the another charitable company, you want to take away the license, you want to convert the company, and at last option बचता है कि इस कंपनी को वाइंड अप कर दो. पर क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन है तो लास्ट में ही यूज होगा. दिस इज अबाउट सेक्शन 8. एंड इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड,
exemptions to section 8 company. Can I say around 17 to 18 पॉइंट्स अपनी बुक में ऑलरेडी हैं, जो कुछ भी नहीं, सिर्फ कंपनी लॉ का एक समराइज वर्जन जो पूरा कंपनी लॉ में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो. अगर आपने सेक्शन नंबर लेट्स से 203 कंपनीज एक्ट का पढ़ा है सीएस का, तो उसमें साफ ये भी पढ़ा है कि सेक्शन 8 कंपनी को सीएस कंपलसरी एप्लीकेशन आई मीन अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन नहीं है. तो क्या ना इसे कंपनी लॉ में आप जो भी पढ़े सेक्शन 8 को कंबाइन करके एग्जाम्शन लिस्ट बनाई हुई है और इसमें से 7 to 8 पॉइंट्स आने चाहिए. दिस इज आवर सेक्शन 8 कंपनीज, राइट. दिस इज फर्स्ट पार्ट. यहाँ पे मैं आपको वापस से थोड़ा बुक पे लेके जाऊँ. अर्लियर सेक्शन 25 था, नाउ सेक्शन 8 है, जिसमें सेक्शन 8 का मीनिंग आपको इनमें से एटलीस्ट 3-4 वर्ड्स, मिनिमम 3-4 तो लिखने पड़ेंगे. 5-6 का टारगेट रख सकते हो, उससे ज़्यादा लिखो तो अच्छा. सो दिस लाइक कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एक्सेट्रा. इनमें से एटलीस्ट 4-5 लिखना. अदर देन दैट डिविडेंड कभी नहीं दे सकते आप. मैम सेक्शन 8 कंपनी में क्या फर्म मेंबर बन सकती है? नो, नेवर. सेक्शन 8 कंपनी में फर्म कभी भी मेंबर नहीं बन सकती. सेक्शन 8 कंपनी में फर्म मेंबर बन सकती है, हाँ या ना? वैसे तो कभी भी फर्म कभी किसी की मेंबर नहीं बन सकती, सिर्फ पार्टनर्स बन सकते हैं. कैन आई से फर्म इज नॉट हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड दैट इज वाई फर्म, पार्टनरशिप फर्म खुद की कभी किसी की मेंबर नहीं बन सकती. पर सेक्शन 8 कंपनी एक एक्सेप्शन है जिसमें फर्म भी मेंबर बन सकती है. आर वी क्लियर? सो मैम अगर आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि क्या पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है? यस. किसी और कंपनी की मेंबर बन सकती है? नो. दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. अदर देन दैट फीचर्स एंड एग्जेम्पशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है. और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये सेम पॉइंट वापस आपको सीएस प्रोफेशनल में भी आएगा, कॉपी सेम, नो चेंज. सो जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं कि आपका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है जो इस पर्पस के लिए हुआ है. सेकंड, प्रॉफिट सिर्फ आप ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करोगे, डिविडेंड मेंबर्स को कभी भी नहीं. नाम के पीछे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड जैसे वर्ड्स नहीं लगने चाहिए. मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है. मैं इसको ऐसा फीचर नहीं बोलूँगी बिकॉज हर कंपनी में अब ये फीचर है. स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में से आपको एग्जाम किया है बिकॉज यू नो दैट यू आर चैरिटी एंड व्हेन यू डू चैरिटी यू आर हेल्पिंग गवर्नमेंट so that you know the city, town or whatever particular community you are helping to uplift, आप एक अच्छा काम कर रहे हो. एंड क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला स्टैम्प ड्यूटी आपके लिए एग्जाम्प्ट है. अदर देन दैट काफ़ी प्रिविलेजेस हैं जो यहाँ पे आ रहा है. एंड ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती. एंड सेक्शन 8 कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. डेफिनेटली ऑल द फीचर्स ऑफ कंपनी इज एप्लीकेबल. अदर देन दैट सो मेनी एग्जाम्पशंस आर गिवन. सो ये एग्जाम्शन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. सीएस कंपलसरी नहीं है, हमारे लिए बैड पॉइंट है बट इट्स ओके. मिनिमम शेयर कैपिटल की ज़रूरत नहीं है. आपको 21 डेज बिफोर नहीं 14 डेज बिफोर नोटिस भी एजीएम का चलेगा. आपको मिनट्स के सारे पॉइंट्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. डेफिनेटली आपको जो मिनट्स का सेक्शन है 118 एप्लीकेबल है, पर उसमें मेन चीज़ यही एप्लीकेबल है कि 30 डेज में मिनट्स बन जानी चाहिए. अदर देन दैट इतने पॉइंट्स आपको स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं है जैसे दूसरी कंपनीज को हैं. देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट 14 डेज. 2 डायरेक्टर्स चाहिए जो जनरली हर कंपनी में वैसा ही होता है. बट अगर कोई डायरेक्टर, एक इंसान किसी 15, 20, 25 कंपनी में डायरेक्टर है तो सेक्शन 8 कंपनी को हम उसमें काउंट नहीं करते हैं. दैट इज़ अ बेनिफिट. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं चाहिए, ऑडिट कमेटी चाहिए बट एनआरसी नहीं चाहिए. सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्शन अवेलेबल. लेट मी टेल यू, यहाँ पे 14 तक है. क्या हम इसमें से 7 to 8 याद नहीं रख सकते? आप 7 से 8 जस्टिफाई करोगे ना, मोर देन इनफ है. वाई आई एम टेलिंग यू, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में 4, 5 या 6 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आता. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में 8 मार्क्स तक का जा सकता है. और वो भी गया 8 मार्क्स तक अगर क्वेश्चन गया तो भी उसमें 8 पॉइंट इनफ है. सो 14 पॉइंट्स आर गिवन, इसमें से 8 आपको याद रखने हैं. और रहा बात इनकॉर्पोरेशन का, वो प्रोसेस 100% सेम है. फ़र्क एक चीज़ का है, लाइसेंस, जो आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा आरडी से. बाकी स्पाइस प्लस वाला प्रोसीजर 100% सेम. दिस इज वन पार्ट ऑफ द चैप्टर, सेक्शन नंबर 8. सेकेंड की अगर मैं बात करूँ, ट्रस्ट.
सो ट्रस्ट में आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा? नंबर 1, प्राइवेट एंड पब्लिक ट्रस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंड है रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। रिलीजियस वो किसी रिलीजन के लिए है, चैरिटी ओवरऑल है। सो अगर मैं ऐसा बोलूँ ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन चैरिटेबल हुआ। मैम स्पेसिफिकली अगर किसी कम्युनिटी, टेम्पल, मॉस्क, चर्च ऐसा रिलेटेड है रिलीजन। प्राइवेट मैम ओनली फ्यू पीपल आर इन्वाइटेड, सिर्फ यही कम्युनिटी वाले लोग, यहाँ सिर्फ ये वाला कास्ट आ सकता है, नॉट अदरवाइज। प्राइवेट मैम ओपन फॉर ऑल, कोई भी आए नो प्रॉब्लम। पब्लिक ट्रस्ट किसको ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं एवरीवन, पब्लिक और प्राइवेट? पब्लिक और प्राइवेट किसको ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं? ऑलवेज पब्लिक, ऑलवेज पब्लिक, बिकॉज पब्लिक ट्रस्ट जो है वो पब्लिक ओवरऑल को ओपनली इन्वाइट कर रहा है कि आपको बेनिफिट हम देंगे, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि आपने अपनी कम्युनिटी, अपने लोग नहीं, ओवरऑल पब्लिक देखी है, दैट इज वाई गवर्नमेंट विल गिव यू मोर बेनिफिट। और इसके अलावा टैक्स में, इनकम टैक्स में और आई वुड से टैक्स में बेनिफिट्स क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैम ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है? तो आपको ट्रस्ट डीड बनानी है और उसके लिए कोई सेपरेट रजिस्ट्रार नहीं है, पर आपने प्रॉपर्टीज़ जहाँ रजिस्टर करते हैं सेम जैसे HUF का डीड बोला था वैसे ही यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। दैट इज अबाउट ट्रस्ट। लेट्स सी वंस। सो ट्रस्ट एक पता है आपको, सेटलर और आई कैन से ऑथर, दूसरा है ट्रस्टी, एंड फिर आते हैं बेनिफिशरीज। सो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रस्ट, इसके अलावा हु कैन क्रिएट ट्रस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रस्ट का डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आई वॉन्ट यू टू रीड पीसफुली। पढ़ो इसको। चेक। एंड दिस इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज ट्रस्ट को टैक्स बेनिफिट्स कौन से दे रखे हैं? डन। एंड दिस वन प्लीज अंडरलाइन दैट, क्योंकि इनकम टैक्स में भी काफ़ी बेनिफिट आपको ट्रस्ट के लिए दे रखे हैं। सो दिस इज वन मोर, एंड लास्ट दैट इज ट्रस्ट डीड। सो मैं आपको बता दूं ट्रस्ट डीड में भी क्या होता है, ट्रस्टी का डिटेल, सेटलर का डिटेल, जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी बना रहे हो उसका डिटेल, नाम, राइट, यू कैन से रेम्यूनरेशन के बारे में इफ़ यू वांट टू ऐड, जो भी डीड की कंडीशंस है ऐड दैट, वो आपको अपने शहर के, अपने सिटी के सब रजिस्ट्रार के पास, द वे यू रजिस्टर योर प्रॉपर्टीज सेम वे यू हैव टू गो एंड रजिस्टर, बिकॉज उसके लिए कोई सेपरेट रजिस्ट्रार नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की तरह ये नहीं है, जबकि सोसाइटी के लिए है। सो दिस इज द ओनली पॉइंट, बिकॉज ये भी एक सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट है जिसमें फर्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट डीड। मैम डीड का कंटेंट क्या होगा ये, तो आपको 3 to 5 मार्क्स पूछा जा सकता है, ट्रस्ट डीड का कंटेंट क्या होगा। दिस इज द कंटेंट, दैट इज ऑथर और सेटलर का नाम, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, ट्रस्ट का नाम क्या होगा, प्रिंसिपल एंड अदर ऑफिसेस, जो भी ब्रांच ऑफिसेस आप खोल रहे हो, प्रॉपर्टी कौन सी है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी, एंड अदर देन दैट मैम प्रॉपर्टी किसको जा रही है, फिलहाल ट्रस्टी कौन है, ऑब्जेक्ट क्या होगा उस ट्रस्ट का। मैम फ्यूचर में ट्रस्टी को बदलना हो, उसके पावर्स, उसकी ड्यूटीज, एवरीथिंग, right, and duty of beneficiaries as well, and mode and method of determination of trust means completion of trust. Ma'am, how to wind up the trust, that is this point, determination simply means wind up. So जब आपको ये trust continue नहीं करना है, if you want to put it as a full stop now, how would you do it? So ये चीज़ एक बार आपकी ये deed बन गई, take a signature, स्टैम्प ड्यूटी पे करो, राइट,
ओरिजिनल डीड सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके रजिस्टर करा के आओ। एक बार ये रजिस्टर हो जाए, फाइनल डीड खत्म। और रजिस्ट्री के वक्त क्या होता है, जो पार्टीज हैं दे हैव टू गो, देयर विटनेसेस हैज टू गो with their photograph. Personally you have to go and sign there in front of registrar. This is how trust gets registered. So trust के लिए मैं 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँगी अबाउट द रजिस्ट्री, प्राइवेट एंड पब्लिक ट्रस्ट का डिफरेंस, एंड थर्ड इज अ टैक्स बेनिफिट। चेक। चेक एवरीवन। जाऊं सोसाइटीज पे। ओके, एंड थर्ड वन इज सोसाइटी। सबसे पहले पता होना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज करके है, कंपलसरी है, राइट। इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल सब बनेगा जिसको हम बोलते हैं बाय लॉस, राइट। सोसाइटी के भी टाइप्स होते हैं, इवन बिजनेस के लिए भी सोसाइटी होती है, बैंकिंग के लिए काफ़ी सोसाइटीज़ खुली हुई है, राइट। सो एक होता है चैरिटेबल, मिलिट्री के लिए यू कैन सी फॉर दिस पर्पसेस, पॉलिटिकल एजुकेशन, लाइब्रेरीज, पब्लिक म्यूजियम। सो सोसाइटीज़ के डेफिनेटली बहुत सारे टाइप्स हैं, बट डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी किस टाइप की है। सो आई वुड से सोसाइटी कैन बी यूज फॉर कमर्शियल एज वेल एज चैरिटेबल पर्पस। बट मुझे एक बात बताओ, सोसाइटी कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है, बिजनेस सॉर्ट ऑफ और चैरिटेबल, विच यू फील मोर कंफर्टेबल विथ, कि यार सोसाइटी एंड चैरिटी समझ में आ रहा है या सोसाइटी और बिजनेस समझ में आ रहा है, विच इज़ मोर कंफर्टेबल? मैम चैरिटी। बिजनेस के लिए आप जा सकते हो, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू गो विद द सोसाइटी, इवन कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट कैन आई से द पीपल हु आर इन्वेस्टर्स वुड नेवर गेट अट्रैक्टेड टू सोसाइटी, बिकॉज वर्ड सोसाइटी देख के ही मेरे दिमाग में चैरिटी आएगा यार, राइट। सो इन्वेस्टर्स के लिए लेस अट्रैक्टिव है। एंड मैम अगर मैंने मिक्स खोला तो 50% चैरिटी 50% बिजनेस, आई डोंट माइंड, यू कैन गो विद दैट। बट इनकम टैक्स बेनिफिट जो है वो सिर्फ चैरिटेबल पार्ट के लिए मिलेगा, सिर्फ उतनी एक्टिविटीज़ के लिए मिलेगा, नॉट अदरवाइज। सो यू कैन सी एडवांटेजेस क्या है, प्रोसेस सिंपल है, रिकॉर्ड कीपिंग कंपेरेटिवली कम है कंपेयर टू कंपनी, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इज लो, लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ रेगुलेटर्स इंटरवेंशन एंड टैक्स एग्जेम्पशंस। डिसएडवांटेज जैसे कि मैंने आपको बताया, टैक्स एग्जेम्पशन सिर्फ आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी को मिलेगा, नॉट अदरवाइज। क्योंकि ये चैरिटेबल है तो कमर्शियल सॉर्ट ऑफ नहीं लगती, लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। अगर आपको बाहर से पैसा चाहिए तो इन्वेस्टर कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। सम वॉट कनेक्टेड पॉइंट, एंड डेफिनेटली जो सोसाइटीज़ हैं और वो अगर बिजनेस करना चाहती है, लेट्स से इन फॉर्म ऑफ बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटी, फाइनेंस फैसिलिटी, तो लोग उसको इतना ट्रीट अच्छे से नहीं करेंगे जितना वो बैंक के साथ डील करना चाहेंगे। सो इट्स मोर लाइक अनइनकॉर्पोरेटेड। सो आरबीआई ऑल्सो इसको इतना कंसिडर नहीं कर रही है। सो सोसाइटी चैरिटी के साथ ज़्यादा कनेक्ट होता है कंपेयर टू बिजनेस वेंचर। दिस आर सम डिसएडवांटेजेस। एंड मैम अगर रजिस्टर नहीं करा है तो यू विल नेवर गेट अ सेपरेट लीगल एंटिटी सॉर्ट ऑफ स्टेटस। एंड इसके लिए ये वाला पॉइंट आई वुड से ऑडिट पीछे भी कवर्ड है, लिटिगेशन ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसमें ऑलमोस्ट पॉइंट कवर हो जाते हैं। फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया 7 और मोर मेंबर्स कैन इनकॉर्पोरेट सोसाइटी, और एक बार सोसाइटी इनकॉर्पोरेट होगी उसके बाद जैसे कंपनी है वैसे ही वो वर्क करती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, कंपनी एक कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है, ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। एंड फॉर दिस यू हैव टू क्रिएट MOA, बाय लॉज, दैट इज आर्टिकल्स, यू हैव टू डिसाइड द मैनेजिंग पीपल, दैट इज बोर्ड ऑफ, यू कैन से गवर्नेंस बॉडी जैसा बोलते हैं उसको, गवर्निंग बॉडी, अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड यहाँ पे मेंबर्स होंगे जो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। फॉर्मेशन, इससे ज़्यादा सोसाइटी में कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये, मैम डॉक्यूमेंट्स कौन से देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट। बट स्टिल कंपैरेटिवली जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं एग्जाम में वो ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी का पोर्शन ज़्यादा है कंपेयर टू सोसाइटी। चेक एवरीवन, एनी पॉइंट यू कैन सी होल चैप्टर,
Any point you want me to explain on any page number for this particular chapter, you can ask me.